के अंदर ठीक है ना, long story short, ठीक है, results के अंदर what we discussed is that you know what, we made sure that people that had the adrenaline, right, they had higher क्या कहते हैं physiological arousal, ठीक है ना, as you can see from this, तो मतलब adrenaline does work, ठीक है ना, and we made sure of that क्योंकि the people who did not get adrenaline in both of the groups, placebo वाले, उनका देखो physiological values are very very less compared to other people in their respective groups. So adrenaline does work for those people जिसके लिए adrenaline काम नहीं किया, as in कुछ लोग होते हैं individual differences वजह से adrenaline does not work, हमने उनको discard कर दिया, right? So बुक के अंदर आई नो समटाइम्स व्हेन यू गाइस विल रिवाइज द नोट, ठीक है ना, बुक के अंदर कोई और वैल्यू है, एक्स वाई जी कोई और वैल्यू है, तो जो फाइनल कंफर्म वैल्यू इज दैट्स द ब्रैकेट वाला, राइट? अगर book does not mention that the people were taken out of the experiment क्योंकि they were immune to adrenaline, so they're going to consider the 27, 26, 26 values. But if you mention कि यार उनको निकालने के बाद क्या वैल्यूज थे, then it's 25, 25, 25, 26, right? So there's a slight difference. अगर book mention नहीं करेगा, they're going to go with the higher number वाली value. Moral, अच्छा एक चीज मुझे बतानी कि now this is basically the impact of adrenaline, right? So this is a physiological arousal for every group, जो यूफोरिया वाले हैं, एंगर वाले हैं, combined, ठीक है ना कुछ फर्क नहीं है. अब I'm gonna talk about the euphoria group in specific, ठीक है? And just to recap, euphoria group के अंदर हम जो है पार्टिसिपेंट का बिहेवियर चार कैटेगरी में नोट कर रहे होते हैं, एंड वी वांट टू नोट के ये जो पांच एक्टिविटीज जो पार्टिसिपेंट के सामने हो रहे होते हैं इन द यूफोरिया कंडीशन, दस द पार्टिसिपेंट टेक पार्ट इन दिस एक्टिविटीज और इग्नोर और जस्ट वॉचेस इट और इनिशिएट्स न्यू एक्टिविटी, ठीक है ना? एंड एंगर सेटिंग के अंदर हमारा कुछ और होता है कि क्वेश्चनर्स फिल कर रहे होते हैं, एंड वी वांट टू फाइंड आउट वेदर द पार्टिसिपेंट would follow uh, to disagree with the participant, would disagree with the stooge or agree with the stooge or stay neutral or come up with his own another side of the argument or just watches or ignores the stooge. So इसके अंदर छह कैटेगरीज हैं एंगर सिचुएशन के अंदर, एंड यूफोरिया के अंदर चार कैटेगरीज हैं. तो यूफोरिया के अंदर when we watching a one through a one way mirror, right, we want to know कि सबसे पहले पार्टिसिपेंट जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ठीक है? एंड उसके बाद लेट्स सपोज अगर किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, स्पेसिफिकली अगर कैटेगरी वन के अंदर फॉल करता है, सो वी ऑल्सो वांट टू नो कैटेगरी वन के अंदर फॉल करने के बाद ये कौन सी एक्टिविटी करता है. फॉर एग्जाम्पल, इज इट कैटेगरी वन आफ्टर ड्रॉइंग द फिश or is it category one after doing the hula hoop, right? So we want to know specifically which activity as well. So we want to simultaneously know the activity and what the participant does as well. So जो euphoric situation के अंदर जो activity recording होगी ना, right, वो स्पेसिफिकली एक्टिविटी इंडेक्स स्कोर भी आता है, राइट? दिस इज द एक्टिविटी इंडेक्स स्कोर, ठीक है? सो एक्टिविटी इंडेक्स स्कोर किस तरह होता है? इट्स गोना बी लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई कौन सी कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेंट आ गया. लेट्स सपोज पार्टिसिपेंट फॉल्स अंडर कैटेगरी वन, ठीक है? यहाँ पे हमारा कैटेगरी साइड पे हो गया. अब उसके बाद we're going to also calculate the activity index. So activity index is something separate that's also being calculated in the euphoric condition, right? As I said कि तुम्हें ये भी मालूम करना पड़ेगा कौन सी एक्टिविटी करता है. So activity index calculate करने के लिए what you would do कि जो एक्टिविटी कर रहा होगा ना, obviously जितनी हायर इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी होगी उतना हायर एक्टिविटी इंडेक्स के ऊपर स्कोर होगा. So you know, the hula hoop is the highest and drawing the fish is the least, ठीक है? So let's suppose the participant is in category one क्योंकि he joins the stooge in doing the hula hoop. तो category one activity index 5, but activity index के लिए तुम्हें एक और चीज मालूम करना पड़ेगी, कितना टाइम स्पेंड करता है while doing it, right? Does he do it for 1 minute? Does he do it for what, I don't know, like 15 seconds? So you need to calculate the time as well. Then you find out the activity index score. So yeah, so wildness of the activity as in how intense the activity is, 1 से लेके 5 तक. Hula hoop was 5 multiplied by the time that the participant spent doing it is gonna be a total activity index score, right? So it is entirely possible that there will be some participants in the study who are going to fall on category one, as in they will join the stooge, लेकिन उनके activity index score शायद अलग होंगे. One might engage with the stooge for a longer time in a wilder activity, and the other may engage with the stooge for a shorter time or for a less intense activity. So ये please दिमाग के अंदर
याद रख लेना. Alright, so after explaining this we want to look at it. So ये लोग क्या करते हैं in the euphoria condition, right? This is for euphoria condition. हमारे पास चार groups हैं and this is the activity index that is finally calculated. So what we want to find out is that activity index सबसे ज़्यादा किसका है? Euphoria misinformed का सबसे ज़्यादा है. If you forget what's euphoria misinformed, it is that group जिसको euphoria के गलत side effects बताए होते हैं, right? सेकंड नंबर पे ऑब्वियसली यूफोरिया इग्नोरेंट आता है जिसको यूफोरिया के रन के कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं बताए जाते हैं एंड द लीस्ट यू गेस्ड इट इज द यूफोरिया इनफॉर्म एफिनेफ्रिन इनफॉर्म ग्रुप जहाँ पे दे न्यू द करेक्ट साइड इफेक्ट्स एंड उसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी द नंबर ऑफ मीन एक्शंस परफॉर्म एज इनके ऑन एवरेज एक पर्सन कितने एक्शंस परफॉर्म करता है राइट सो सबसे ज्यादा यूफोरिया मिस इन्फॉर्म का एफिनेफ्रिन मिस इन्फॉर्म का सही है सो to bring you up to pace, right? What does this mean is that the two-factor theory of emotion is correct. क्यों? See, when you क्या कहते हैं जब तुम्हें इंजेक्शन दिया गया था राइट एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं एड्रेनलिन एंड तुम्हें बताता है कि एड्रेनलिन से तुम्हारा हार्ट बीट इंक्रीज होगा एंड स्वेटिंग भी होगी एंड यू नो व्हाट पल्स रेट भी हाई होगा सही है एंड these are the symptoms that you feel जब तुम अमूमन तौर पे नेचुरल तौर पर खुश होते हो राइट तो जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा एड्रेनलिन रिलीज होता है दैट्स व्हाई यू फील दिस सिम्टम्स नाउ लेट्स सपोज कि तुम्हारे सामने सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे एक बंदा जो है ना तुम्हारे सामने ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बेस पे तुम्हारा एक्साइटमेंट जगाता है फॉर एग्जाम्पल द स्टूज इज बिहेविंग इन अ मैनर जिसकी वजह से यू विल बी द स्टूज विल ट्राई टू मेक यू हैप्पी राइट ठीक है एंड यू आर विटनेसिंग दैट सो यू एक तरफ तुम्हें इंजेक्शन लगा हुआ है जिसका साइड इफेक्ट ये आने वाला है एंड दूसरी तरफ सामने स्टूज है जो हरकतें करता है जिसके बेस पे आप हैप्पी हो गए एंड यू नो हैप्पी होते हैं तो क्या होता है हैप्पी होते तो हार्ट बीट तेज होती है राइट लेट्स सपोज एंड स्वेटिंग भी होता है कभी कभार एंड पल्स रेट भी ज़्यादा होता है ठीक है अच्छा सो इट्स गोना बी लाइक दिस अगर तुम्हें बताया गया कि भाई तुम्हें इंजेक्शन दिया हुआ है और आपको ये होने वाला है मतलब नाउ यू नो यू आर अवेयर कि मुझे इंजेक्शन दिया हुआ है और ये होने वाला है और आपके सामने स्टूज कोई ना कोई हरकतें करता है जिसके बेस पे आपको हैप्पी कराने की कोशिश करता है और जब हैप्पी होगे भी आप तो आपको ये होगा नाउ इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल कि अगर आपको इंजेक्शन लगे और आपको पता है कि ये होने वाला है सो यू विल नॉट फील कि मुझे स्टूज जो है ना ये चीज़ करवा रहा है यू विल से कि मुझे इंजेक्शन ये चीज़ करवा रहा है क्योंकि आपको बताया ही गया कि इंजेक्शन ये आपके साथ करेगा बट लेट्स सपोज कि आप ऐसे इंसान हो ठीक है ना जिसको एड्रेनलिन के बारे में कुछ और बताया गया मतलब या तो कुछ बताया नहीं गया होगा लेकिन ना कुछ भी नहीं बताया या तो बताया कि आपके साथ गलत चीज़ें होंगी इचिंग होंगी आई नो लाइक नमनेस एंड व्हाटएवर ठीक है ना सो इफ यू आर दिस टाइप ऑफ पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट द मिस इन्फॉर्म एंड इग्नोरेंट ठीक है जनरली बात कर रहा हूँ सो यू विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि इंजेक्शन आपको ये चीज़ कॉज करे क्योंकि आपको बताया गया कि इंजेक्शन आपको या तो कुछ करेगा नहीं या नमनेस कॉज करेगा और उस सिचुएशन के सामने अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान हरकतें करते हैं जिसकी वजह से दे ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी you're gonna feel this right so now you're gonna think it is the stooge who's responsible for making me feel this not the injection क्योंकि you're not expecting these things to be caused by the injection so inform वाले लोग they didn't get happy सबसे ज़्यादा क्योंकि they knew whatever they're feeling is because of the injection and not because of the happiness ठीक है and they were expected that's why उनके activity index सबसे कम है and their mean acts initiatives का कम है and that is also why इन दोनों का जो है एफिनेफ्रिन इग्नोर मिस इन्फॉर्म का active index and mean action सबसे ज़्यादा है क्योंकि they never expected the injection to cause this. So all they thought was whatever I'm feeling is genuine happiness, and you can see that that's why they perform more behaviors, which is a sign of they're happy. Placebo group, ironically, ठीक है ना placebo के अंदर is also gonna have the same effect क्योंकि placebo के अंदर right, placebo is basically a drug ठीक है ना which will never cause your body to go through anything क्योंकि बस नमक पानी दिया गया है नमक पानी से आपको कुछ नहीं होने वाला so your body will not be feeling anything and also you're told that this will do nothing to you so you're expecting nothing to happen to you
and nothing will happen to your body. So whatever happens to your body is now genuinely because of the stooge, not because of the injection. So that's why ये लोग भी थोड़ा बहुत genuine happiness feel करते हैं. So that's why epinephrine informed की जो happiness थी सबसे कम थी and बाकी सबकी ज़्यादा थी. But इन दोनों के सबसे ज़्यादा इसलिए थी स्पेशली मिसइन्फॉर्म क्योंकि वो तो कुछ और ही एक्सपेक्ट करता है. एक होता है कुछ नथिंग एक्सपेक्ट करना, एक होता है कुछ और एक्सपेक्ट करना, होता है बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, राइट. सो जैसे यू नो माँ को बोल दो कि मैं फेल हो गया और तुम पास हो गए, ए ग्रेड आ गया, तो उस पर ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है एज कम्पेयर टू यू सेइंग कि मेरा सी ग्रेड आ गया देन गेटिंग एन ए. सो दैट्स व्हाट हैपेंड कि these were people expecting completely opposite thing and they got the opposite effect, and these people were expecting nothing but they got something else in their favor. So that's why there's the difference in values. uh, do you understand what I'm explaining यहाँ पे? अलीज़ा, कोई कंफ्यूजन है मुझसे अभी पूछ लो. All right, I guess I'll carry on. अच्छा देखो, so in CIE what you're supposed to remember about the results, right? देखो कभी कभार results बहुत छोटे होते हैं तो तुम्हें पूरी वैल्यूज याद रखनी पड़ती है. कभी कभार यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं. सो वेन एवर यू इनकाउंटर एनी एक्सपेरिमेंट जहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे, मैं बता भी दूंगा ये वाला एक्सपेरिमेंट है. वहाँ पे यू डोंट एग्जैक्टली नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट? ठीक है ना? अनलेस दे यूज दिस आंसर, यू मस्ट यूज डेटा. ठीक है, you must use data other, then you need to mention the exact score. But if they don't mention this statement कि you must use data, as in इसका मतलब है कि you should, it's not must that you use a figure, right? So if you're answering generally without the mentioning of data, तुम्हें सबसे बताना ये पड़ेगा कि highest कौन सा, lowest कौन सा, right? You will say something like that कि you know the activity index in the euphoria condition was the highest for the epinephrine misinformed group, followed by the epinephrine ignorant group, and it was the lowest for the epinephrine informed group. So you just told the order without mentioning the figures, right? And मतलब that will be good to go अगर ये statement you must use your data वाला सीन नहीं mention करते. अगर mention करते हैं फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, you will obviously have to remember the data. So अगर तुम्हें data याद करना होगा तो फिर किसका याद करना होगा, right? I will say कि just remember the highest and the lowest. ठीक है, अगर तुम्हें डेटा याद करना है हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट की याद करना, ठीक है, एंड दैट विल बी गुड टू गो. यू कैन ऑल्सो राउंड ऑफ, ठीक है ना, राउंड ऑफ कर सकते हो. राउंड ऑफ करने का जो तरीका होता है ना, तुम एग्जैक्ट ऐसे नहीं लिखोगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल 22.56 लिख रहा हूँ तो तुम 23 ऐसे नहीं लिखोगे. तुम क्या करोगे यार, वो कहाँ गया, आई कैन नॉट फाइंड द की, ये सिंबल जो होता है राउंडिंग ऑफ सिंबल, यार इज इक्वल टू साइन बनाते हैं लेकिन वो वे भी ऐसा होता है बिल्कुल जैसे ये बना हुआ ना. इस तरह करोगे, लेट मी जस्ट इंक्रीज इट इन साइज. ठीक है ना, सेमी कॉलन छोड़ दोगे, राउंड ऑफ करके 23 कर दोगे, मतलब यूर सेइंग कि इट्स लाइक राउंडेड ऑफ टू 23 ऐसे करके लिख दोगे, राइट? सो ये लिखोगे तो राउंडेड ऑफ टू 18 करके लिख दोगे इफ यू डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्कोर. ठीक है, तो दैट्स वन वे दैट यू कैन राइट. ठीक है, सो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट याद कर लो, मसला नहीं होगा. ठीक है, दैट शुड गेट यू थ्रू. एंड वैसे जनरली पूरे टेबल के लिए क्या याद करना है, पहले यू नीड टू लर्न कि सबसे ज़्यादा किसका था, सबसे कम किसका था, उससे कम किसका था एंड उससे कम किसका था. तो इस तरीके से तुम्हें आंसर को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सो या क्या कहते हैं, डिस्क्राइब. ठीक है, so they're saying describe the result from the activity index. So not only they're saying state, एक होता है कि रिजल्ट बता दो क्या था, आगे बढ़ जाओ. they're saying describe the result, right? ठीक है ना, on the activity index measure in the euphoric condition for epinephrine ignorant, ठीक है ना, ignorant group compared to your epinephrine misinformed group. So you're gonna suppose जैसे कि पहले ये बता दो कि इन्फॉर्म मिसइन्फॉर्म सबसे ज़्यादा था एंड उसके बाद epinephrine ignorant था. ठीक है ना, you will also say this कि भाई एक्टिव इंडेक्स की तुम वैल्यूज डाल दोगे कि 22 या 23 राउंड ऑफ करके मिस इन्फॉर्म का आता है एंड 18 करके इग्नोरेंट का आता है, राइट? ठीक है, तो
व्हेन यू राइट दिस तुम्हारे 3 मार्क मिल जाएंगे। क्यों? एक वैल्यू मिस इन्फॉर्म के लिए मिल जाएगा, एक वैल्यू इग्नोरेंट वाले के लिखने के मिल जाएगा, एक वैल्यू तुम्हें जनरल कंपैरिजन लिखने के लिए मिल जाएगा कि किसका ज्यादा किसका कम था। ठीक है, सो दैट्स योर वे टू डू इट। अबे यार, तो व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू हर्ड मी से? मतलब व्हाट इज द लास्ट थिंग यू हर्ड मी से? क्या चीज, आखिरी चीज सुनी गई सही से? यार रुक जाओ एक मिनट। um, अब आवाज आ रही है सही से? नहीं, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट थिंग यू हर्ड मी से सही से? You were explaining to estimate the off values, ठीक है। अच्छा, so let's suppose estimation के लिए मैं बता दिया कि यार वो ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके। अच्छा, so let's suppose ये question है, right, describe the result for the activity index measure। So they specifically told you कि भाई कौन सा score चाहिए। So when they write this, please mean x मत लिखना, सिर्फ यही लिखना, ठीक है। अच्छा, in the euphoria condition for ignorant and misinformed, तो ऑब्वियसली इसके लिए सबसे पहले तुम्हें वैल्यूज याद होना चाहिए। सो जनरल डिस्क्रिप्शन वो भी कि तुम पहले बताओगे मिस इन्फॉर्म का ज्यादा था, एक्टिविटी इंडेक्स इसका मतलब एंड इग्नोरेंट का कम था, तुम पहले ऑर्डर बता दोगे, राइट? ठीक है, विच मेंट, तुम्हें बताना पड़ेगा कि विच मेंट के स्टूज ज्यादा हैप्पीनेस सिचुएशन में किस सिचुएशन में फील कर रहा था, दैट्स मिस इन्फॉर्म। So you will not only tell the result के orders but also tell के what does it mean, and that's going to guarantee you 2 marks. उसके अलावा you can write the value for misinformed, that is 23 round off करके, 22.56 or 18 or 18 point something 28 I guess, हाँ। And that's what I said, right? If you remember the misinformed की value, it will get you through, क्योंकि if you just write कि सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम किसका था, that's 1 mark, and if you tell के what does it mean, that's the second mark. And if you write one value for misinformed, that's the third mark. You will not need to write the second value for ignorant if you just get all three of these points correct. So that's why highest and lowest yaad kar lena, and you need to be good with phrasing what these results mean. Okay, that's the important thing. Bharal. All right. So yeah, these are the mood skills. ठीक है ना, mood skills जो दोनों ग्रुप के अंदर पूछे थे, right? हैप्पी वाले के अंदर हैप्पी पूछेंगे, इरिटेटेड या एंग्री वाले के अंदर एंग्री वाले पूछेंगे। यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू मेमोराइज कि व्हाट द ऑप्शंस आर। तुम जीरो से लेके फोर, जीरो और फोर का ऑप्शन याद कर लेना हर दोनों के अंदर, क्योंकि मिडिल वाली चीजें तुम भूल जाओ, मसला नहीं है। लेकिन तुम ये एग्जैक्ट सवाल याद रखो जो ऊपर लिखा हुआ है, एंड इसके ऑप्शन जीरो एंड ऑप्शन फोर याद रखना दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज द रिजल्ट्स नाउ, ठीक है। सो हैप्पीनेस वाले यूफोरिया के अंदर पूछेंगे, एंगर वाला एंगर के अंदर पूछेंगे। सो इफ आवर हाइपोथेसिस वाज करेक्ट, ठीक है ना, मतलब इफ आवर नोशन इज करेक्ट या assumption इज करेक्ट, यूफोरिया वाले लोगों ने जिसने सबसे ज्यादा एक्शन जो था मिस इन्फॉर्म ने परफॉर्म किया, तो आई वुड फील कि इनका ही हैप्पीनेस सबसे ज्यादा होगा, एंड प्लेसिबो सॉरी एफिनेटली इन्फॉर्म का हैप्पीनेस सबसे कम होगा। सो लेट्स फाइंड आउट। एक होता है ये तो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन है ना, ठीक है ना। सो वी वांट फाइंड विल दैट actually lead us to find out the actual emotional results as well. तो इमोशन के हिसाब से you guessed it and you were right कि euphoria misinformed did feel the highest level of happiness, ठीक है ना, and the lowest amount of happiness was felt by euphoria informed. So not only the behaviors of the people indicated that, the self reports about happiness also indicated that, right? क्योंकि 1.9 है, ठीक है ना, और उसका 0.98 है, ठीक है। ये जो 25 is the amount of participants that we have in each group after removing some of them, ठीक है। अच्छा,
सो यू नीड टू रिमेंबर कि सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस किसका था और सबसे कम हैप्पीनेस किसका था. इसके अंदर सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस यूफोरिया मिस इन्फॉर्म का था और सबसे कम यूफोरिया इन्फॉर्म का था, राइट. ठीक है. सो अगेन एंगर के लिए भी थोड़ा बहुत अलग होगा. एंगर के लिए ठीक है ना. सबसे ज्यादा जो एंगर एंगर महसूस किया था दैट वाज द इन्फॉर्म इन्फॉर्म वाला सरप्राइजिंगली. एंड सबसे कम एंगर जिसने महसूस किया था दैट वाज इग्नोरेंट. ठीक है ना. सो आई गेस एंगर के अंदर ठीक है ना रिजल्ट्स go the opposite way if you know that it's the side effect of the injection. You're still are gonna be more angry, and if you don't know it's the side effect of the injection, you will be least angry. So it goes in the opposite direction for anger. ठीक है ना. If you remember the opposite rule for anger, तुम्हें euphoria का सबसे आसान समझ में आ जाएगा, and anger का भी सबसे आसान तरीके से समझ में आएगा. Whatever it is for euphoria, उसका opposite anger के लिए हो जाएगा, right? अच्छा. uh, ठीक है. अच्छा. So you know these values, right? And ये self report के अंदर, right? ये सब इसके अंदर आ रहा है. आई टोल्ड यू कि उसके अलावा एंगर सिचुएशन के अंदर भी हम ये भी मेंशन कर दें पार्टिसिपेंट कौन सी कैटेगरी में है, राइट. सो एंगर के लिए बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस क्या है. एंगर के लिए बिहेवियर ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो आए हैं दैट इज ये वाला. ओवर्ट का मतलब है थिंग दैट इज ऑब्जर्वर. कोवर्ट का मतलब है थिंग्स दैट यू कैनॉट ऑब्जर्व. सो फीलिंग्स यू कैनॉट ऑब्जर्व क्योंकि वो लोगों के अंदर होता है. The behaviors of the people you can observe, so that is why it is known as overt anger, as observable anger, not hidden anger, clear as day wala anger. So behavioral anger सबसे ज़्यादा किसका है? Ignorant का है. ठीक है. सेल्फ रिपोर्ट पे सबसे ज़्यादा एंगर किसका है? इन्फॉर्म का है. सो हैप्पीनेस के लिए द ओवर्ट हैप्पीनेस and the covert happiness dono highest is going to be the misinformed and the lowest going to be the informed. ठीक है ना. They show the least happiest behavior and they're showing the least happiest scores. But in anger, there's something else. Anger can the self-report can the epinephrine informed claims that they're the most angriest, but the behavior reaction of the people shows that epinephrine ignorant was the most angriest. ठीक है ना. So just remember this. Euphoria situation के अंदर, right? The highest happiness was felt by क्या कहते हैं the misinformed in behavioral and self-report. Then क्या कहते हैं ignorant, then placebo, then the informed. ठीक है ना. On the self report सबसे ज़्यादा informed महसूस करेगा, then placebo, then what's his name, ignorant. ठीक है ना. लेकिन the observation was ignorant is the most angriest, then placebo, then informed, right? So behavioral observation anger के थोड़े से order अलग होगा. ठीक है. वन वे इन विच एंगर वाज मेजर. तुम क्या कर सकते हो? सेल्फ रिपोर्ट का थ्रू कर सकते हो कि सेल्फ रिपोर्ट के थ्रू हमने एंगर मेजर किया था, या वी वर लुकिंग एट थ्रू अ वन वे मिरर एंड वी वर रिकॉर्डिंग देयर बिहेवियर्स. ठीक है ना. कि व्हाट डू दे डू विद द स्टूज, मतलब व्हाट डू दे डिसएग्री, अग्री, do show neutral responses, do they initiate agreement, disagreement, do they watch the stooge, or do they ignore the stooge, right? ठीक है. तो any one of them would be good. One reason why it is important to operationalize the variables using the example of anger in this study. So we're asking कि भाई जब हम anger note down कर रहे होते हैं, right? Why it is important that you specify how you are noting down anger. As an observation के अंदर we are specifically looking for one of these six behaviors, right? मतलब इसके बाहर कुछ नहीं है और इसके अलावा कुछ नहीं है. And in self report we are noting down how people anger are by looking at these scores, right? इसके अलावा कुछ नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. So even if it's observable anger or whether it's the self report anger, in both the situations everyone knows exactly where to look for anger. कोई और चीज़ हम कंसिडर नहीं करेंगे. So they're asking, why have we made a very specific criteria for anger even when it comes to self-report or even when it comes to behavior? Why is it necessary to tell people how to measure anger specifically in the research? ये पूछ रहे हैं ऑपरेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं. And the basic answer is that so that everyone in the experiment will measure anger the same way. If they don't if they don't measure anger in the same way,
everyone will have then different ways of measuring anger, and then we'll end up with different values, right? Then the study will be invalid, and also the study will not be reliable. ठीक है, क्योंकि देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड तरीका नाउ टू मेजर एंगर, हर कोई अपने तरीके से एंगर मेजर कर रहा है, तो ये मसला आएगा. So because so that everyone stays on the same page, that's why we have made sure that everyone knows how to measure anger. इसमें कोई मसला? ये क्या है? ये तो मैं बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है ना? So this is a summary of the results, ठीक है ना? This is a summary of the result of what we discussed, ठीक है ना? So अगर अब तक कुछ समझ में है, this is whatever I'm saying summarized in 5-6 sentences, ठीक है? So जो तुम्हारा वो था ना हाइपोथेसिस, ये वाला स्लाइड के अंदर, ये वाला, राइट? आई ठीक है ना? सॉरी, एक मिनट आगे पीछे, या. So this is the thing that we wanted to prove, right? Okay, is this gonna be proved or not, right? So this is all of them are proved, right? When the participant, when they are gonna experience some sort of physiological arousal, right, and they know why they're feeling that physiological arousal, the participant क्या करेंगे, will make use of the explanation, they will make use of the information of why they're feeling that physiological arousal, and उसके हिसाब से they're gonna decide what emotion they're gonna feel, and that's exactly what happened, ठीक है ना? And if they're gonna have a physiological arousal, ठीक है ना, for and they know why they're having a physiological arousal, ठीक है ना, they are not going to choose any other reason to label their emotion. They're going to go for that specific explanation that exists in their mind, right? They're not going to think of any other alternative कि शायद इसकी वजह से भी हो सकता है, उसके उनके दिमाग में शायद का ऑप्शन ही नहीं आएगा. जो इनके दिमाग में डाला गया है, द रीजन फॉर द फिजियोलॉजिकल रिजल्ट, वही रीजन आएगा. अच्छा, and if you put a participant, or if we make them feel an emotion that they felt in the past, right? So होगा क्या, they're going to experience, ठीक है ना, an emotion same wala, if they have been in that same physiological arousal state in the past. As in, for example, तुम्हारा heartbeat तेज कर रहा है, and past के अंदर तुम्हारा heartbeat तेज करने का मकसद fear था. So if your uh, heart beats fast again, drawing from the experience that you had in your past, you're now gonna make use के मेरा पास्ट में भी हार्ट बीट तेज करने के बाद मुझे डर लगा था, तो अभी भी हार्ट बीट तेज करने के बाद मुझे डर ही लग रहा है, एज इन. सो whatever you experience in the past, उसी को तुम इस्तेमाल करोगे in the present and the future to label your emotions. सही है? uh, so yeah. So one, right, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ. So hypothesis, right? One tail hypothesis. One tail hypothesis के अंदर, ठीक है ना, you have to decide which side is going to be greater than the other side, ठीक है? If you just say that the participant will feel different emotions when they're in the with the stooge in the happy situation, and different emotions when they're with the stooge in the angry condition, right? If you write this, तो फिर भी वन टेल नहीं है, क्योंकि यू डिड नॉट स्पेसिफाई ये कौन सा इमोशन ज्यादा कहाँ पे मेंशन मेजर फील करेगा. तुमने बस बोल दिया अलग जगह में अलग इमोशन फील करेगा, राइट? तो इवन इफ यू से दिस, इट डज नॉट क्लैरिफाई कि कौन सी जगह पे ज्यादा इमोशन में फील करेगा, कौन सी जगह पे कम इमोशन में फील करेगा. सो द राइट वे टू राइट दिस इज that the stooge would the participant would feel euphoria highest in the euphoria condition and the lowest in the anger condition, right? Now when I say this, क्या होता है, it tells me exactly किस situation के अंदर emotion high हो रही है, किस situation के अंदर low हो रही है. The same thing I can say for anger. The participant will feel the highest anger in the angry stooge situation and the lowest anger in the happier stooge situation, right? But if I remain with the dialogue,
The participant will feel different emotions in happy stooge and anger stooge. That's just general the two-tail hypothesis. So you need to tell के highest कहाँ पे होगा, lowest कहाँ पे होगा. That is gonna be your one-tail hypothesis, right? ठीक है. So is that clear? How to write the two-tail, one-tail hypothesis for Sartre and Singer's aim? अच्छा, बाय द वे जो ऊपर लिखा होगा ना उसके हिसाब से hypothesis अलग होगा. ठीक है ना, ऊपर इन्होंने चीज ही लिखी हुई तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. अगर ऊपर कुछ और लिखा होता तो मैं कुछ और hypothesis बनाता. So they're saying कि भाई find out mood of the stooge affected the way the participant interpreted their arousal level. ठीक है. So let's suppose they would say कि the information given to the participant while they were injected with adrenaline impacted the participant arousal level. So अब injection की बात करेंगे, obviously my hypothesis will be about the injection. I will not say that different injection groups will have different levels of physiological arousal. I will not say this, right? I will say that euphoria misinformed has would have the highest uh, rating of happiness, and euphoria in form would have the lowest level of happiness, right? So I'll have to say something like this when they tell me the injection situation. So basically जो भी पर्सनैलिटी लिखा होगा उसके हिसाब से मुझे हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, राइट? इस पे कोई मसला? Alright, null hypothesis जो तुमने ऊपर लिखा है ना उसका तुम nullify कर दो. There would be no difference in the emotions of the stooge in the whether they're in the angry situation or the happy situation, right? So whatever you said उसको nullify कर दिया. अच्छा भाई, कंक्लूजन होता क्या है? कंक्लूजन जो भी तुम्हारा एम होता है ना, एम वाली स्लाइड के अंदर जो भी चीज लिखी होगी ना उसकी कंफर्मेशन है, राइट? उसकी रिफ्रेजिंग होगी कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन सपोर्ट होती कि नहीं होती, ये मैं फाइंड आउट करता है ना, हमने बोल दिया होती है, ठीक है ना. इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है ना. इफ की जगह इज होता है, इज अ पर्सन, इफ अ पर्सन हु इज पुट इन अ सिचुएशन, ठीक है ना, मतलब यही होता है ना. हमने क्या कर दिया, वी हैव कंफर्म कि हाँ ऐसा ही होता है, राइट? सो कंक्लूजन के यू नीड जस्ट whatever result is supported, right? उस एम को रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ठीक है ना. लेट मी गिव यू व्हाट डू आई मीन, लेट मी शो यू व्हाट डू आई मीन. ये यार ये ना, नहीं ये नहीं है. ये रहा, ये ना, ठीक है, सही है. सो दे वांट टू फाइंड दिस आउट, राइट, टू इन्वेस्टिगेट what the role of cognitive arousal, ठीक है ना. सो कंक्लूजन के अंदर सपोर्ट तो हो गया ना, मतलब इट इज सपोर्टेड बिकॉज ऑफ रिजल्ट. तो कंक्लूजन में किस तरह लिखूंगा इसको, ठीक है ना. uh, इसको हटा दिया. The role of cognitive factors in the experience of emotions, the role of cognitive factors in the experience of emotion, uh, there is a role of cognitive factors in the experience of emotion when the participant is in a state of physical arousal that has no immediate explanation, right? So you just write it in a confirmatory tone. Okay? You say, कि हाँ, it is true. ठीक है ना? So that's how you find that aim, rewrite it in a manner that confirms, ठीक है ना, reword it. एक और करते हैं, ठीक है ना. To see if we label, so the participant, right, do label an emotion if they have an appropriate reaction. सही है. So you just write it like that. That's the easiest way to write the conclusion of. If you remember the aim, the conclusion आसानी से याद आएगा. All you need to do is translate it in a confirmatory tone, and that's it. So they do ask के क्या कहते हैं, conclusion क्या होता है. They do ask sometimes, ठीक है ना. I don't think यहाँ पे पूछा हुआ है बाल.
सही है, तो कंक्लूजन इस तरह लिख लेना। अच्छा, सो नाउ बिकॉज we're done with our study, तुम्हें एक चीज करवानी है। देखो पेपर वन के अंदर ना व्हाट यू गाइस नीड टू नो कि यार, ये अलीजा ने भी पूछा था राइट, ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था कि यार एक सवाल है, ठीक है ना, आई डोंट रिमेंबर विच स्टडी, लेकिन इसके लिए ये वाला सवाल किस तरह करते हैं। सो आई एम जस्ट गोना शो यू कि क्या मतलब है। पेपर वन के अंदर जब तुम एंड में पहुंचोगे, एंड ऑफ द पेपर वन राइट, चलो 2020 दिखा देते हैं यार, ठीक है ना। पेपर वन के एंड में या तो क्वेश्चन 10 होगा या तो क्वेश्चन 9 होगा राइट, डिपेंड्स ऑन द, क्या कहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं। बट भारत डजंट मैटर, ठीक है ना, दोनों सिचुएशन के अंदर भी 60 मार्क्स होते हैं। एट द एंड ऑफ पेपर वन यू आर ऑलवेज गिवन दिस क्वेश्चन राइट, इवैल्यू, अच्छा आई एम गोना से दिस, evaluate the study by XYZ, evaluate the study by Sachin Singer, right, ये क्वेश्चन आता है। या तो इस तरह लिखा होगा या तो उसका दूसरा वेरिएशन लिखा होगा, लेकिन इट मींस द सेम थिंग। डिस्कस ट्रू स्ट्रेंथ, ट्रू वीकनेसेस with regards to a study by Sachin Singer, ठीक है। एंड दिस इज द ऑलवेज एट द एंड राइट, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, यहाँ पे आता हमेशा एंड में आता है। क्या मुसीबत, या ठीक है ना, या तो इवैल्यूएट लिखा होगा, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभार तुम्हें आसान कर देंगे इवैल्यूएट के बाद में मतलब भी बता देंगे कि टू स्ट्रेंथ टू वीकनेस लिखना ही है। सो या तो इवैल्यूएट लिखा होगा, आगे कुछ लिखा नहीं होगा, या तो राइट टू स्ट्रेंथ टू वीकनेस लिखा होगा, या इफ यूर लकी पूरा लिखा होता है जहाँ पे तुम्हें एग्जैक्टली पता होता है क्या करना है। अगर फिर भी नहीं लिखा होता, अंडरस्टैंड कि जहाँ पे एएस का आखिरी जो क्वेश्चन होता है, आखिरी बिल्कुल एंड वाला जहाँ, एंड यू विल नो दिस क्यों, 10 मार्क का होता है। आखिरी जो 10 मार्क का सवाल है जिसके आगे एएस के अंदर इवैल्यूएट का लिखा होगा ना, हमेशा टू स्ट्रेंथ टू वीकनेस के ऊपर है, भले वहां पे लिखा हो भले वहां लिखा नहीं हो, हमेशा टू स्ट्रेंथ टू वीकनेस वाली बात करता है, ठीक है ना। एंड इट्स ऑलवेज एट द एंड, रेयर केसेस के अंदर होता है कि नहीं आता, लेकिन हमेशा वहां पे होता है, ठीक है ना। इट्स एट द एंड, ये डिमांड क्लैटमेंट का लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड वहां पे आई गेस ये दोबारा मिलीग्राम का आएगा क्योंकि उसी साल का है। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे सार्चर सिंगल लिखा हुआ है राइट, टू स्ट्रेंथ एंड टू वीकनेसेस, अच्छा यहाँ पे यहाँ मोट लगा। सो यू सी व्हाट आई मीन, इट इज ऑलवेज एट द एंड, हमेशा आखिरी सवाल होता है। अच्छा, तो इवैल्यूएट द स्टडी बाय, यहाँ पे यहाँ मोट हटा के हम लिख देंगे सार्चर सिंगर राइट, एंड देयर यू राइट द ब्रैकेट के अंदर टू फैक्टर थ्योरी इमोशन स्टडी इन टर्म्स ऑफ टू स्ट्रेंथ टू वीकनेसेस राइट। कभी कभार क्या करते हैं, टू स्ट्रेंथ टू वीकनेसेस में से दे मेक श्योर टू मेक वन पॉइंट कंपल्सरी राइट। इन्होंने बोला हुआ कि ठीक है आप 4 पॉइंट लिख लो टू स्ट्रेंथ टू वीकनेस, लेकिन उनमें से एक पॉइंट ना रिपीटेड मेजर्स को एड्रेस करता है जो डिजाइन होता है। अब भले वो स्ट्रेंथ हो भले वो वीकनेस हो, हमें नहीं पता, आपकी मर्जी, लेकिन एक पॉइंट के अंदर रिपीटेड मेजर्स को आपने डिस्कस करना है। सेम विद दिस, कि भाई हमें नहीं पता कि आप क्वालिटेटिव डेटा को स्ट्रेंथ या वीकनेस पे डालोगे, हमें नहीं पता आपका मसला, लेकिन आप डालो किसी एक में। एंड यहाँ पे भी यही है कि भाई जनरलाइजिटी की आपने बात करना है, भले वो स्ट्रेंथ कर दो वीकनेस कर दो, आई डोंट नो, बस बात करनी है। सो लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं डीमन क्लैटमूथ हटा के, evaluate the study by Sachin Singer in terms of true strength and true weaknesses. At least one of your evaluation point must be generalizability, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉर्मल मतलब एक होता है कि जनरलाइजेबल नहीं है या है, तो तुम्हें स्टडी करने से ही पता चल जाता है। तो सार्चर सिंगर के अंदर इज अ मिक्स केस, दोनों तरफ जा सकता है राइट। बहरहाल आई एम नॉट गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन अभी, मैं बता दूंगा कि यार चैप्टर पढ़ते हुए इस क्वेश्चन की उसी वक्त ही तैयारी कैसे करनी है। सो देयर इज दिस फॉर्मूला दैट एवरी सिंगल एएस, क्या कह रहा हूँ, एवरी सिंगल स्कूल फॉलोस राइट, एंड इट्स अ वेरी आसान फॉर्मूला, ठीक है। इस GRAVED जो ग्रेव होता है ना, कब्रिस्तान। आई एम गोना रीस्टार्ट दिस मीटिंग क्योंकि 1 मिनट रहता है, एंड आई एम गोना बी राइट बैक विद यू गाइस, ठीक है ना।